Can you tell me 3 things that I can do, that anyone can do, to make their relationships with their partners better? So I love myself, I love myself, I love myself. 3 times a day, सुबह शाम रात, बहुत अच्छा काम करेगा. Oh my God, this is amazing question. Who I am? Why does sound heal? How does it exactly heal? Who I am? Oh my God, this is amazing question. Who I am? I am a person right now, and someone who is sitting in front of you. I have multiple characters. I am that I am. Jewelry per se, because we have heard about crystals a lot, but I've hardly heard about jewelry. So why jewelry? I am a jewelry designer by profession also. I am into jewelry field from last 12 years. So I have a business in gold and diamonds and gemstones. But specifically why I started this angle of self-love jewels is because in COVID time, like I was overwhelmed with so many patients having so many problems and issues that I would not able to help everyone. And I was drained in the end of the time because handling so many cases was difficult. So at that moment, I realized that why not make something which can be prepared in advance, which won't drain me, and I can get more help also. And then we can give this to everyone so that they will have the peace of healing with themselves. So at that moment, we decided side with me that I have to combine my jewelry with the healing, because from the ancient practices we used to have yantras, we used to have talisman, we used to have tabiz. So this was the concept that a piece of energy is transferred to you with a tangible form, so that when you carry it, you always remember it, that you have that energy, and you are always in that embracement of that energy. What is the difference between metal jewelry and having crystal, like both charged jewelry? So crystal has a tendency to absorb. Crystal की tendency होती है कि वो absorb करता रहता है every time. And जो metal होता है उसकी absorption power less है compared to the crystals. Crystals get dirty also. क्यों? क्योंकि वो सब कुछ absorb करेगा तो वो गंदे हो जाएंगे. And crystal needs more cleansing, but metal doesn't require that much of cleansing. अगर मेटल को प्रॉपरली अगर हम उसको कॉन्सेक्रेट कर लेते हैं, उसको एनर्जाइज कर लेते हैं, तो उसको क्लिनजिंग के लिए नहीं चाहिए. बट क्रिस्टल्स में क्लिनजिंग प्रोसेस पावर चाहिए. सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल. आई वॉज वेयरिंग अ वॉच, और उस वॉच में ना डायमंड्स थे, एंड आई वॉज हैविंग पेन. मेरे को बार बार यहाँ पे पेन होने लग जाती थी जब भी मैं पहनती थी. उसके 1 घंटे बाद मैंने उसको एनर्जी में क्लीन भी किया, बट फिर भी पेन आ जाती थी. कि वो क्रिस्टल्स जो थे, वो डायमंड्स थे, उनको इतनी थॉरो क्लिनजिंग की ज़रूरत थी, तब जाके वो मेरा यहाँ पे पेन खत्म हुआ. कि इनफैक्ट वॉच उतारने के बाद भी मुझे पेन हो. पहले तो 3-4 दिन समझ नहीं आया कि क्यों पेन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जब उतार दी आ जाता है ना दिमाग में, ओह दिस वाज द थिंग. एंड देन उसके बाद से पता लगा कि क्रिस्टल इतनी जल्दी इफेक्ट करते हैं. सो इवन डायमंड्स, इवन कोई भी क्रिस्टल हो, वो गंदे हो जाते हैं. अब वो कौन सा क्रिस्टल कब गंदा होगा वो डिपेंड करता है, बट क्रिस्टल गंदे हो जाते हैं एंड इट हैज़ टू बी क्लीन. अगर वो क्लीन नहीं होंगे तो वो आपकी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट भी देंगे. जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, when you say that they absorb a lot of energy, do you, I mean, give me 2 reasons, 2 very clear reasons why, with the current too much noise, too much environmental impact, a metal is a better choice. Metal is a very better choice if you don't know the process of cleaning and energizing. Simple. क्लीनिंग और एनर्जाइजिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप मेटल ज्वेलरी पहने, बेटर है. क्रिस्टल ज्वेलरी आप तब पहने अगर आपको क्लेंजिंग और एनर्जाइजिंग आती है. आप उसको मेंटेन कर सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है. And point number 2, include when talk about the increasing environmental stresses and toxins around us, which make crystal jewelry more, which basically puts more pressure on cleansing it more often. जैसे पहले 15 day
साइकिल होता है क्लींजिंग का, तो वो 15 डे साइकिल अब बढ़ नहीं गया बिकॉज 15 दिन में वो कितना absorb। अभी 15 डे का साइकिल नहीं मैं बोलूँगी. द क्रिस्टल नीड क्लेंसिंग एंड एनर्जाइजिंग एवरी डे. समटाइम इट कुड बी फ्यू आवर ऑल्सो. अगर आप बाहर गए हो, काफ़ी लोगों से मिले हो, तो वो सारी एनर्जी आपको प्रोटेक्शन में या चीज़ों में वो ऑब्जॉर्ब करेगा. तो उसके बाद आके घर आप क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आप पहन के रखोगे तो इट इज़ जस्ट लाइक कि एक पानी का जार है. क्रिस्टल इज़ अ वाटर ग्लास एंड उस पर अभी तो वाइट कलर का वाटर है, ट्रांसपेरेंट, लेकिन जैसे जैसे वो अब्जॉर्ब करेगा ग्रे, देन ब्लैक, देन डार्कर शेड ऑफ ब्लैक हो जाएगा. एंड अगर आपने वो पानी पूरा क्लीन नहीं किया और उसी पानी को आप लेके पीते रहोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन टू यू. My question basically is that clear uses of your jewelry in the life of a woman. ज्वेलरी इज सिंगार एंड हमारे शास्त्रों में लिखा है दे आर 9 रस. तो ये श्रृंगार रस में आता है. एंड फॉर स्पेशली विमेन श्रृंगार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. एंड ज्वेलरी वो वाली पहने जो उनको ब्यूटिफाई करे, उसके साथ उनका एनर्जी और इंक्रीज करे, उनको स्ट्रेंथ दे. तो आई थिंक नथिंग इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट. अगर एक वुमेन को वो कॉन्फिडेंस दे सके, उसके फियर से ओवरकम कराने में हेल्प करे, एक अबंडेंस दे, उसको खुद फील कराए कि वो खुद ही लक्ष्मी है, उससे बेहतर और क्या होगा. Why does sound heal? How does it exactly heal? How does sound heal? Okay. Do you know कि आपकी बॉडी में अलग अलग साउंड है. आपका दिल धड़कता है, क्या साउंड प्रोड्यूस करता है? धक धक. आपके किडनी में से आवाज़ आती है ची ची करके. आपके लिवर में से अलग आवाज़ आती है, आपके इंटेस्टाइन में से अलग आवाज़ आती है. आप अल्ट्रासाउंड कराओ अंदर एंड वो एंजियोस्कोपी कराओ तो आपको पता लगेगा हर एक ऑर्गन से अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं. बेसिकली ये अलग अलग आवाज़ें क्यों आती है? देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ दैट ऑर्गन. ऑर्गन मूव कर रहा है. ऑर्गन मूव जो बना है, ऑर्गन वो किससे बना है? मल्टीपल सेल्स से. तो हर एक सेल्स का एक बंच बना हुआ है अलग अलग ऑर्गन्स. ये वाले सेल्स लिवर ऑर्गन को बनाते हैं, ये वाले सेल्स किडनी ऑर्गन को बनाते हैं. तो अलग अलग सेल्स के कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं. वेयर देयर इज अ मूवमेंट, anything that moves, anything that vibrates produce sound. तो जिसकी जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है, जो सेल्स जिस ऑर्गन में जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर साउंड क्रिएट कर रहे हैं और वो एक साउंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है. उस ऑर्गन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज वहाँ की साउंड की फ्रीक्वेंसी खराब हो गई है, अट्यून्ड हो गई है, नॉइज हो गया, हार्मनी से नॉइज हो गया. तो जैसे ही वो हम उस फ्रीक्वेंसी जो मूवमेंट ऑफ सेल्स हैं उसकी अलाइनमेंट करेंगे वापस जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है जिससे, तो वो वापस हेल्दी हो जाएगा ऑर्गन आपका. सो साउंड, एक्सटर्नल साउंड भी हम प्रोड्यूस ले सकते हैं और इंटरनल साउंड्स भी ले सकते हैं उसको हार्मोनाइज करने के लिए. इंटरनल साउंड्स जो हम चैंटिंग करते हैं, हम ओम चैंटिंग करते हैं, हम हमिंग करते हैं, उससे क्या होता है? अलाइनमेंट पैदा होने लग जाती है. एक्सटर्नल साउंड, सिंगिंग बॉल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे एक्सटर्नल साउंड, नेचर की आवाज़, बर्ड्स के अलग अलग चंपिंग, ये एक्सटर्नल साउंड्स होते हैं जो हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी देते हैं जिससे हम हील हो जाते हैं. Give me 3 self affirmations which will help me love myself. Oh, that's the best one. The best affirmation I give is I love myself. इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि आप बोलो अपने आप को I love myself. एंड इससे और भी ज़्यादा आप स्ट्रेंथफुल एंड पावरफुल बना सकते हो अपना नाम आगे लगा के. लाइक आगे या पीछे आयरा I love you और स्वास्थी I love you. अपने आप को बोलना I love you. बिकॉज ये वर्ड्स बहुत सिंपल है, अच्छे हैं, बट इट क्रिएट्स अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट. कितना स्माइल कर रही है कितना स्माइल कर रहे हो आप. सो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ
3 times a day, सुबह शाम रात, बहुत अच्छा काम करेगा. Okay. Now, how do we use energy healing to create more abundance in our life? 3 pointers on that. एनर्जी हीलिंग इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म, सो डिपेंड करता है आप कौन सी टेक्निक यूज़ करना चाहते हो. बट आपको एक सिंपल तरीका कि 3 थिंग्स दैट यू शुड डू जिससे आपकी अबंडेंस बढ़ेगी. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइदिंग, जिसको हम कहते हैं डोनेशन. लोग आज की डेट में ना भूल जाते हैं या करते नहीं हैं, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि जो दोगे वो पाओगे. सो आपके हमारे ग्रंथों में भी लिखा है 10 देना, गीता में भी लिखा है 10वां हिस्सा देना. तो आप जो अर्न करते हो उसका 10% आप डोनेट करें. जैसे आप डोनेट करेंगे आपको वो into 100 होके मिल जाएगा. उसकी आप छोड़ दो, इतना टेंशन मत लो, बट मेन भावना रखो पहले देने की. सो नंबर 1 पॉइंट इज टाइदिंग एंड और डोनेशन. सेकेंड इज सर्विस, कि आप सर्विस में क्या कर रहे हो, किसी की मदद किस तरीके से कर रहे हो. अब मैं अगर सर्विस में बोलूँ, कोई हाँ मेरे दोस्त बहुत अर्ज में था, उसको दारू चाहिए थी, उसने कहा कि प्लीज़ भाई ला दे, मैंने उसको दारू ला के दी, मैंने बहुत बड़ी सर्विस की है. तो उसका हम सर्विस नहीं बोलेंगे. सर्विस वो हुआ जो आपने सामने वाले के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए किया, जो एक्चुअली जो नीडी था, जिससे उसका यू कैन से कि उसका बेनिफिट होगा. लाइक गौशाला में जाके सर्विस करना, एनिमल्स की भी सर्विस में बहुत लाभ है. गौशाला की सर्विस करना, वृद्ध आश्रम में जाना, खाना बांटना, ये सारा आपका सर्विस पार्ट में आएगा. सो डू हैव अ इंटेंशन ऑफ डूइंग सर्विस सेल्फलेसली, ज़रूर करें. एंड द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि आपको पता होना चाहिए आपके कितने फाइनेंसेस आ रहे हैं और कितना आपका खर्चा है. अगर आपको ये पता नहीं है तो आप कहीं ना कहीं माइंड में हमेशा वेग होते हो कि मुझे कितना अर्न करना है और कितना स्पेंड करना है. तो ये 3 चीज़ें, टाइदिंग एंड डोनेशन, सर्विस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर ये तीनों चीज़ें आपने अच्छे से की हैं तो आपका फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ जाएगा. Can you tell me 3 things that I can do, that anyone can do, to make their relationships with their partners better? The couples that can do, which can have their relationship work better, right? Okay. See, it's a very important thing is, again I will say in this, कि important is loving yourself, because until and unless जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्यार शेयर कैसे करते हैं और प्यार होता क्या है. तो फर्स्ट थिंग इज आई विल से स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, एंड लविंग योरसेल्फ इज अ लाइक लाइफ लॉन्ग जर्नी. एक लंबी जर्नी है जो खुद के साथ ही समझने में टाइम लग जाता है. एंड स्टार्ट विथ हैविंग गुड फिजिकल एक्सरसाइजेस, क्योंकि स्पेशली एक कपल का रिलेशनशिप, एक हम नॉर्मल वर्ल्ड में गए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ वेल दे आर इंटीमेटेड. अगर उनका रिलेशनशिप इंटीमेसी ठीक नहीं है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी. अब वो प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं? बिकॉज फीमेल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स. अगर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ या सेक्रल चक्रा में एनर्जी एक्सेस हो जाती है, जब वो जाएगी उनकी एग्रेशन में, वो उनको इरिटेट करेंगी, वो एग्रेसिव हो जाएंगी, हर छोटी छोटी बात पे एक प्यारा सा ताना आएगा. सो अगर उस चीज़ को बैलेंस करना है तो इंटीमेसी अच्छी होनी चाहिए. इंटीमेसी अच्छी होने के लिए आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. सो स्टार्ट विद हैविंग अ गुड फिजिकल हेल्दी एक्सरसाइजेस. डू प्राणायाम. प्राणायाम से आपकी बॉडी में और आपके इमोशन को आपको हैंडल किस तरीके से करना है वो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी. बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर हेल्दी और अपना कंट्रोल अगर आपके हाथ में नहीं हुआ तो आप कभी भी बह जाओगे, कभी भी लूज आउट कर जाओगे. सो हैव गुड प्राणायाम. एंड द थर्ड इज क्लियर कम्युनिकेशन. बहुत सिंपल है. अगर मैन बोलता है कि मुझे अभी खाना खाना है, अभी भूख लग रही है, तो उसे मतलब खाना खाना है, भूख लग रही है. अगर फीमेल सेम लाइन बोलेगी तो उसका फिर भी डाइसी हो सकता है कि अब मेरा मूड नहीं कर रहा है. आई एम फीमेल, आई नो हाउ दी हार्मोन्स वर्क, राइट. उनका हर वक्त इसमें बहुत सिंपल है. अगर मैन नाराज़ होता है, ही वांट्स कि उसे स्पेस दे दिया जाए, उस वक्त कोई बात ना करे, वो थोड़ी देर में अपने आप सेटल हो जाएगा.
लेकिन अगर विमेन नाराज़ होती है, वो बोलेगी मेरे सामने मत आओ, मुझसे बात मत करो, और उसका मतलब होता है कि उसी के सामने आओ, उससे बात करो, उसे मनाओ, उसे जब भी पाओ, जब तक वो मान ना जाए। और अगर आपने उसे स्पेस दे दी उस वक्त सुन के, कोई काम का नहीं है ये। सो 3 things: healthy exercises, pranayam and good clear communication.